Okay, in this lecture of determinants, we will start with properties of determinants. Properties of determinants. See, the first property is, this is very interesting. Very, very, very interesting. So let me write the first property. The first property is the value of determinant remains unchanged if its rows and columns are interchanged interchanged. Now what does that mean? I'll explain that. देखो, सीधा बोल रहा है कि वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन्स अनचेंज्ड. Value of determinant remains unchanged. What remains unchanged? Value of determinant. If rows and columns are interchanged. If the rows and columns are interchanged. Okay. So what does that mean? It means as this. Let us have a determinant here, and that determinant is, say, 2 1 3 0 1 7 minus 2 5 3. So what is row 1? Row 1, this. Row 2, row 3, R3. Columns 1, 2 and 3. Column 1, column 2, column 3. Okay. Now what I do is I interchange rows with columns. Rows and columns are interchanged. What does that mean? It means that now what you have as row, it will become what you have as first row, it will now become first column. So see, what does that actually, how does that happen? See, the first row is 2 1 3, so you will write 2 1 3 this way. Now what you have 2 1 3 as first column. The second row is 0 1 7, so you will write it 0 1 7 as second column. And third row is minus 2 5 3, so you'll write minus 2 5 3 like this as third column. Now suppose if I calculate, if I find the value of this determinant, if I evaluate this determinant, अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं और इसको सॉल्व करके मुझे समझो वैल्यू मिलता है कोई भी एक नंबर अल्फा. ओके, अल्फा कोई एक नंबर है, तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो इसको सॉल्व करके भी मुझे क्या मिलेगा? मुझे अल्फा ही मिलेगा. देखो ये दोनों डिटर्मिनेंट अलग अलग दिख रहे हैं, एकदम अलग दिख रहे हैं. दोनों डिटर्मिनेंट अलग दिख रहा है, लेकिन फिर भी दोनों का वैल्यू सेम है. क्यों? क्योंकि दोनों में क्या हो रहा है? रोज एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज्ड. इफ यू interchange rows and columns, then the value of the determinant remains unchanged. ये दोनों भी डिटर्मिनेंट सेम वैल्यू है. जो वैल्यू इस डिटर्मिनेंट का है वही इस डिटर्मिनेंट का है. इस डिटर्मिनेंट से ये डिटर्मिनेंट कैसे मिला अपने को? हमने रो और कॉलम इंटरचेंज कर दिया. देखो पहले R1 क्या था? 2 1 3. अब तुम देख सकते हो R1 देखो क्या है,
पहले R1 था 213, अब C1 है 213, C1 है 213। पहले R2 017 था, अब C2 है 017। R3 -253 था, अब C3 है -35। ओके, और जो पहले C1 था वो R1 हो गया। देखो पहले C1 क्या था, 20 -2, अब ये देखो ये हो गया 20, C1 हो गया। आर यू गेटिंग? जो पहले C1 था अब वो यहाँ पे R1 हो गया, जो पहले C2 था वो यहाँ पे R2 हो गया। ओके, सो व्हाट वी हैव डन, वी हैव इंटरचेंज रोज एंड कॉलम्स। रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज करने पर फिर से वही मिलता है, वैल्यू चेंज नहीं होती है। दैट इज व्हाट इज रिटन। ओके, एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। द वैल्यूज ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन्स अनचेंज्ड। The values of determinant remains unchanged if its rows and columns are interchanged. Okay, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ for example, let me write example here. For example, 213 31 - 7 025। ओके, ये एक डिटर्मिनेंट है। अब एक काम करो, रोज जितने भी रोज हैं सबको कॉलम बना दो। तो 213 कॉलम, 31 -7 31 - 7 एंड 025 और ये दोनों इक्वल है, इसके लिए बीच में इक्वल टू लिख सकते हैं। ओके, आई होप ये समझ में आ गया होगा। ओके, नाउ विल गो फॉर द सेकंड प्रॉपर्टी। द सेकंड प्रॉपर्टी इज if any two rows or columns or two columns of a determinant are interchanged, then the value of determinant changes its sign. So now you will all understand what does that mean. देखो यहाँ पे लिखा है if, क्या लिखा है, if any two rows or two columns of a determinant are interchanged। देखो यहाँ पे भी इंटरचेंज हो रहा है, लेकिन फर्क क्या है? देखो फर्क ये है, यहाँ पे जो इंटरचेंज हो रहा है वो any two rows है। That means two rows are interchanged amongst themselves। यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ पे rows and columns are interchanged। देखो दोनों में बहुत फर्क है। जो प्रॉपर्टी नंबर 1 है उसमें क्या है, तुमने रो को कॉलम के साथ में इंटरचेंज कर दिया। जो पहले रो था वो कॉलम हो गया, जो कॉलम था वो रो हो गया, ये अलग है। यहां पे तुम क्या देख रहे हो, यहां पे यू आर इंटरचेंजिंग एनी टू रोज amongst themselves। एनी टू रोज आर इंटरचेंज्ड। ओके, मतलब कोई भी दो रो में आपस में इंटरचेंज हो रहा है। ओके, यहाँ पे रो का कॉलम के साथ में इंटरचेंज नहीं हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, तो अभी मैं एग्जाम्पल लिखता हूं। फॉर एग्जाम्पल देखो, फॉर एग्जाम्पल -135 2 3 -2 0 7 9। ओके, देखो अब मैं क्या कर रहा हूं, आई विल इंटरचेंज एनी टू रोज। समझो मैंने इसको सॉल्व किया, ये मैंने सॉल्व, ये डिटर्मिनेंट है, इसको मैंने समझो सॉल्व किया इसको, और सॉल्व करने पे मुझे इसका वैल्यू मिला, कोई एक नंबर मिला मुझे, और वो नंबर क्या है, वो नंबर है अल्फा। क्या मिला मुझे? अल्फा।
मैंने इसको सॉल्व किया और ये सॉल्व करके मुझे इसका वैल्यू मिला अल्फा। अल्फा कोई एक नंबर है, अभी इसको ऐसे ही अज्यूम करते हैं। ओके, ये डिटर्मिनेंट अल्फा है। अब मैं क्या करता हूं, देखो अब मैं एक दूसरा डिटर्मिनेंट लिखता हूं, और ये दूसरा डिटर्मिनेंट मैं कैसे लिखता हूं ध्यान से देखो। मैं यहां पे लिखता हूं R1 इंटरचेंज्ड विथ R3। R1 और R3 को मैं इंटरचेंज करता हूं। मैं क्या करता हूं, R1 और R3 को इंटरचेंज करता हूं। तो अब नेक्स्ट डिटर्मिनेंट में, मतलब ये वाले में क्या होगा ध्यान से देखो। नेक्स्ट डिटर्मिनेंट में जहां पे R1 है, अब वहां पे R3 होगा 0, 7, 9, ठीक है। और जिसमें चेंज नहीं है वो वैसा ही रहेगा 2, 3, -2। और जहां R3 है वहां पे R1 आ जाएगा -1, 3, 5। ओके, 0, 7, 9 यहाँ पे देखो ये -1, 3, 5 है, लेकिन क्या होगा, ये जो है इसके साथ में इंटरचेंज हो जाएगा। ओके, तो जहां पे R1 है वहां पे 0, 7, 9 आ गया, और जहां पे R3 था वहां पे -1, 3, 5 आ गया। और दोनों का वैल्यू, अब देखो, अब मैं इसको R2 वैसे ही है, R2 में कोई चेंज नहीं है, ठीक है ना। मैंने क्या लिखा है, मैंने लिखा है R1 इंटरचेंज विद R3। ये तरीका है उसको लिखने का, R1 इंटरचेंजेस विद R3, ऐसे लिखने का। ओके, और ये करने के बाद में अब मैं वापस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करता हूं। ध्यान से देखो, यहाँ पे ध्यान से देखो आप लोग, कि अगर मैं आपसे बोलूं कि ये दोनों डिटर्मिनेंट सेम दिखते हैं क्या, ये जो डिटर्मिनेंट है, ये डिटर्मिनेंट और ये डिटर्मिनेंट, क्या दोनों सेम दिखते हैं? तो आप बोलोगे कभी नहीं, दोनों भी सेम नहीं दिखते हैं, लेकिन दोनों का आंसर सेम है। अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मुझे वापस अल्फा ही मिलेगा। क्या मिलेगा मुझे? वापस अल्फा। तो याद रखना, अब आई एम सॉरी, यहाँ पे मुझे माइनस अल्फा मिलेगा। क्या होगा? वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट चेंजेस इट्स साइन। यहाँ पे अगर यहाँ पे अल्फा मिला है तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा? नेगेटिव अल्फा मिलेगा, नेगेटिव अल्फा मिलेगा। ये अल्फा था तो ये नेगेटिव अल्फा, मतलब जो भी आपको यहाँ वैल्यू मिला है उसका नेगेटिव अल्फा यहाँ पे आपको मिलेगा। जब, एक बार फिर से रिपीट करता हूं मैं, जब आपने रो और कॉलम इंटरचेंज किए थे, जब रो और कॉलम का इंटरचेंज हो गया था, तो दोनों का वैल्यू सेम है, दोनों भी सेम है। अगर ये सॉल्व करने पे कोई नंबर मिल रहा है, अगर इसको सॉल्व करने पे आपको कोई नंबर मिल रहा है, तो इसको सॉल्व करने पे आपको वही नंबर मिलेगा। ओके, लेकिन लेकिन जब दो रो आपस में इंटरचेंज हो रहा है तो क्या होगा? अगर इसको सॉल्व किया तो अल्फा मिला, इसको सॉल्व करने पे नेगेटिव अल्फा मिलेगा। ओके, अब एक एग्जांपल और लेते हैं, और इस वाले में दो कॉलम को इंटरचेंज करते हैं। जैसे कि देखो यहाँ पे मेरे पास है 379219025, ठीक है। अब मैं देखो यहाँ पे मैं लिखता हूँ C1 इंटरचेंज विद C2। ओके, C1 इंटरचेंज विद C2, C2 और C1 में इंटरचेंज हो रहा है। देखो दोनों C1 लिखने का तरीका देखो, C1 देन यू हैव डबल हेडेड एरो, डबल हेडेड एरो, C1 इंटरचेंज विद C2, ठीक है। सो देखो क्या होगा, यहाँ पे कहीं पे आपको C3 में कुछ करना है, कुछ नहीं करना है, तो C3 वैसे ही छोड़ दो, 0 to 5 C3 वैसे ही छोड़ दो। अभी C1 और C2 में क्या है? इंटरचेंज है, तो जहां पे C2 है वहां पे अब C1 आएगा, और C1 की जगह पे C2, तो यहाँ पे आएगा 219। देखो इन दोनों में आपस में इंटरचेंज हो रहा है, सो 219 और ये हो जाएगा 379। अगर इसको सॉल्व करने पे आपको अगर वैल्यू मिल रहा है m, तो इसको सॉल्व करने पे आपको मिलेगा -m। ओके, तो ये आप लोग ध्यान में रखिए और इसको भी जल्दी से कॉपी कर लीजिए, कॉपी दिस आल्सो। थर्ड प्रॉपर्टी इज इफ any two rows, if any two rows or columns, if any two rows or columns of a determinant
are identical, then the value of determinant is 0. The value of determinant is 0. Okay, what does that mean? देखो इसका मतलब क्या हो गया वो पहले जरा समझ लो. इसका मतलब ये हो गया कि समझो तुम्हारे पास में एक डिटर्मिनेंट है. ओके, आपके पास में एक डिटर्मिनेंट है और उस डिटर्मिनेंट के जो एलिमेंट्स हैं वो देखो ऐसे हैं 2 - 2 7, 3 0 5 एंड 2 - 2 7. तो आप क्या देख रहे हैं? आप देख रहे हैं कि R1 और R2 दोनों आइडेंटिकल है. दो रो हैं और ये दोनों रो R1 और R3, आई एम सॉरी, R1 और R3 दोनों क्या है? आइडेंटिकल है. दे आर सेम. ओके, एग्जैक्टली सेम. यहाँ पे 2, यहाँ पे फर्स्ट 2, यहाँ भी 2, -2 -2 7 7. ठीक है, तो ये जो डिटर्मिनेंट होगा, इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है. इसका आंसर 0 ही होगा. आपको अगर देखना है तो आप सॉल्व करके देख लो, इसका आंसर 0 ही होगा. ये तो हो गया व्हेन टू रोज आर आइडेंटिकल. यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा? मैं लिखूंगा R1 रो R1 rows R1 and R3 are identical rows. ओके, ये हो. अब एक एग्जांपल और लेता हूं. देखो यहाँ पे फॉर एग्जांपल, नाउ एक एग्जांपल और लेता हूं. देखो यहाँ 5 1 0 2 3 -1 एंड 2 3 -1. अब यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे कॉलम 2 और कॉलम 3 दे आर आइडेंटिकल. तो वैल्यू क्या होगा? वैल्यू 0 ही होगा. आई होप ये समझ में आ गया हो. यहाँ पे आप लिखेंगे कॉलम्स C2 and C3 are identical columns. They are identical columns. Let's see the fourth property. The fourth property is if each element of a row, if each element of a row or a column of determinant, if each element of a row or a column of determinant is multiplied by a constant k, then the value of the new determinant is k times value of the new determinant is k times the value of given determinant.
प्लीज कॉपी दिस। अच्छा, ये जितने भी प्रॉपर्टीज हैं उन सारे प्रॉपर्टीज में ये वाला प्रॉपर्टी सबसे इंटरेस्टिंग है। देखो क्या बोलता है, ये बोल रहा है इफ ईच एलिमेंट ऑफ अ रो और अ कॉलम, ठीक है, ऑफ अ डिटर्मिनेंट इज मल्टीप्लाइड बाय अ कांस्टेंट k, कोई तो एक कांस्टेंट है, उससे तुमने क्या किया, तुमने सारे एलिमेंट्स एक पर्टिकुलर रो या कॉलम के सारे एलिमेंट्स को कांस्टेंट मल्टीप्लाई किया, then the value of the new determinant is k times the value of given determinant, k times the value of given determinant का क्या मतलब हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि जो डिटर्मिनेंट ओल्ड डिटर्मिनेंट था उसका वैल्यू अगर अल्फा है, तो जो न्यू डिटर्मिनेंट है, न्यू डिटर्मिनेंट, द डिटर्मिनेंट दैट यू ऑब्टेन्ड after multiplying all the elements of a particular row by number k, okay, the new determinant will have the value k into alpha. It is k times alpha, k times alpha, okay. तो इसको मैं आपको with example explain करता हूँ. So for example देखो और अच्छे से समझ में आएगा. Let me write a determinant here, and the determinant I write is 7 minus 9 2 3 2 minus 7 0 5 1, ठीक है. अब देखो मैं क्या करता हूं, मैं लिखता हूं यहाँ पे मैं लिखता हूं R2 मतलब ये, R2 मतलब सेकेंड रो, ओके. मैं लिखता हूं R2 changes to, this is the symbol for changing. I want to change my R2, so R2, then you will have an arrow. So what you wrote R2 changes to 3R2, R2 changes to 3R2, मतलब जो R2 है उसके जितने भी एलिमेंट्स हैं, R2 के जितने भी एलिमेंट्स हैं सबको 3 मल्टीप्लाई होगा, ओके. ये इसका मतलब है. तो अभी देखो क्या मिलेगा, ध्यान से देखो. तो अब आपको मिलेगा ये R1 है, R1 में कोई चेंज नहीं होगा, 7 minus 9 2. ये R3 है, R3 में भी कोई चेंज नहीं होगा, 0 5 1. लेकिन R2 में चेंज होगा. R2 में क्या चेंज होगा, R2 का जितना भी एलिमेंट्स है, R2 बोला है ना तुमने, तो R2 मतलब जितने भी R2 में एलिमेंट्स है सब पे वो एप्लीकेबल होगा. तो R2 में जितना भी एलिमेंट्स है सबको 3 मल्टीप्लाई होगा, 3R2. तो देखो ये क्या हो जाएगा 9, ये कितना हो जाएगा 6, और ये कितना हो जाएगा -21. अब सोचो तुमने इसको इवैल्यूएट किया, ये डिटर्मिनेंट तुमने इवैल्यूएट किया जैसे सिखाया है ना वैसे, तो वो इवैल्यूएट करने के बाद में और आपको इसका वैल्यू मिल गया, समझो क्या मिल गया, वैल्यू बीटा. इसका वैल्यू कितना मिल गया, बीटा मिल गया. तो अब ये जो डिटर्मिनेंट है ये हो जाएगा तुम्हारा 3 टाइम्स बीटा. इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 3 टाइम्स बीटा. क्यों भाई 3 टाइम्स, क्यों मल्टीप्लाई कर दिया बीटा में, इसलिए क्योंकि तुमने ये जो डिटर्मिनेंट है इसमें तुमने क्या किया, इसमें जो सेकेंड रो है उसके सारे एलिमेंट्स को 3 मल्टीप्लाई किया. तुमने क्या किया, सेकेंड रो में जितने भी एलिमेंट्स हैं सबको 3 मल्टीप्लाई किया. तो क्या होता है, जब किसी भी, वही तो उधर लिखा है ना, वही लिखा है, किसी भी रो के सारे एलिमेंट्स को जब आप कोई नंबर के मल्टीप्लाई करते हो तो वो जो नंबर है वो सीधा डिटर्मिनेंट के वैल्यू को मल्टीप्लाई हो जाता है. तुमने 3 2 -7 तुमने सारे एलिमेंट्स में 3 मल्टीप्लाई किया, तो क्या हुआ, वैल्यू में सीधा 3 मल्टीप्लाई हो गया, ओके. वैल्यू में सीधा 3 मल्टीप्लाई हो गया. एक if you allow I can take one more example. I can take, suppose instead of writing beta सोचो इसका वैल्यू जो है, मतलब कुछ भी रॉन्ग लिख रहा हूं मैं, कुछ भी लिख रहा हूं, जैसे समझो इसका वैल्यू तुमको मिला 14, इसका वैल्यू क्या मिला तुम्हें 14. मुझे मालूम नहीं है कि वो क्या वैल्यू है, वो तो सॉल्व करने पे है, लेकिन सोचो ऐसा कि 14 मिला. तो अगर 14 मिला
तो यहाँ पे तुम्हें वैल्यू क्या मिलेगा, 42 मिलेगा। कितना मिलेगा, 42। क्यों 42 मिलेगा, 14 इंटू 3, 14 इंटू 3 क्या मिलेगा, 42। क्या होता है, जब तुम कोई एक कांस्टेंट के मल्टीप्लाई करते हो विथ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ पर्टिकुलर रो और अ कॉलम, तो जो वैल्यू है उसमें के मल्टीप्लाई हो जाता है। तो 14 में 3 मल्टीप्लाई हो गया तो 42। ओके, आई होप ये समझ में आ गया हो सबको। Now, as I took here, let me take the discussion ahead. As I multiplied R1 with, I multiplied R1 with 3. Sorry, I multiplied R2. All the elements of R2, I multiplied with 3. So when I did this, the value of the determinant, which was earlier beta, this will also get multiplied by 3. And it becomes what? 3 beta. It will become 3 beta. So the same way, try to understand, if suppose I do two operations at once. Okay, just be alert. Suppose I do two operations at once. That is, I multiply all the elements of R2 by 3 and I multiply all the elements of R1 by 5. Okay, I multiply this 5, this also by 5 and this also by 5. So what will happen? See, as per the property, what does it say? It says, अगर तुमने किसी भी एक रो, कोई भी एक रो के सारे एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई किया तो वैल्यू मल्टीप्लाई हो जाता है। तो यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, R2 को भी कर रहा हूं, और देखो अभी मैं लिखता हूं, क्या लिखता हूं मैं यहां पे लिखता हूं R1 चेंजेस टू 5R1, R1 चेंजेस टू 5R1। तो अब क्या होगा, अब देखते जाओ, यहां पे देखते जाओ। पहले तो R2 चेंजेस टू 3R2, तो ये हो जाएगा 9। R2 पहले लिखता हूं मैं 9, और बाद में इसको 3 मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा 6, और ये हो जाएगा -21। ठीक है, अब R1 के पास जाओ, R1 विल चेंज टू 5R1, तो ये हो जाएगा 35, ये हो जाएगा 40, -45, और ये हो जाएगा 10। R3 का कुछ भी लिखा है, नो, 051। देखो, अगर इसका वैल्यू, ये डिटर्मिनेंट का वैल्यू बीटा था, तो अभी इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू हो जाएगा, एक बार 3 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बीटा में, और फिर दूसरी बार 5 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 3 क्यों मल्टीप्लाई करना पड़ा, 3 मल्टीप्लाई करना पड़ा क्योंकि R2 में तुमने 3 मल्टीप्लाई किया है, इसके लिए 3 मल्टीप्लाई करना। फिर तुमने R1 में 5 मल्टीप्लाई किया है, तो तुमको 5 भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो टोटल कितना हो जाएगा, टोटल 15 टाइम्स b हो जाएगा। दैट इज इक्वल टू 15b, दैट इज इक्वल टू 15b। ओके, R1 में R2 में मल्टीप्लाई हुआ 3, इसके लिए जो अर्लियर वैल्यू था उसमें 3 मल्टीप्लाई हुआ, फिर R2 में मल्टीप्लाई हुआ 5, R2 में मल्टीप्लाई हुआ 5, इसके लिए 5 भी मल्टीप्लाई हो गया, तो टोटल कितना मल्टीप्लाई हो गया, 15। आई होप ये अभी समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो अब आप लोग इसको कॉपी कर सकते हैं। Okay. Now this, as I told you, that fourth property is the most interesting property of all. So now I will take this discussion ahead. Okay, let me take it one step. There is something more to be discussed in this property. And what is that? I'll show you. So like I said, suppose this is your determinant, and
suppose this is the determinant you are given, and when you solve you got the value as beta. Then what you do is you wrote R2 changes to 3R2. Now let us do R2 changes to 3R2. When you do that, you get the new determinant, and that determinant, in the new determinant you will be writing R2 as 3R2. That is R1 no change, 7 minus 9 2. Okay, R3 no change, 0 5 1, but R2 will become 3R2, so 9 6 and minus 21. And what will be the value? The value will be 3 beta. Okay, let me write this equation. Let me write it as equation number 1. ये जो इक्वेशन है ना, बीटा इक्वल टू, ये क्या है, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 लिखा है, ठीक है, और इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 लिखता हूं. ओके, अब देखो मैं क्या करता हूं, मैं लिखता हूं using equation 1 in equation 2, using equation 1 in equation 2. मतलब बहुत सिंपल है. देखो यहाँ पे तुम्हारे पास में बीटा का वैल्यू है. किसका वैल्यू है? बीटा का. ये बीटा का वैल्यू क्या है? ये है ना. अरे बीटा इक्वल टू है ना. व्हाट यू हैव? यू हैव बीटा इक्वल टू, आई होप सबको दिख रहा होगा. ये देखो बीटा इक्वल टू ये डिटर्मिनेंट. तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं कि इक्वेशन 2 में जहां पे बीटा है वहां पे मैं क्या लिखूंगा? बीटा इक्वल टू दिस डिटर्मिनेंट. मैं ये डिटर्मिनेंट लिख दूंगा, ये डिटर्मिनेंट वहां पे मैं लिखूंगा. मैं क्या कर रहा हूं? यूजिंग इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2. तो ध्यान से देखो क्या हो जाएगा. तो इक्वेशन 2, ये इक्वेशन 2 है ना. इक्वेशन 2 में तुमने इक्वेशन 1 यूज किया, तो अब इक्वेशन 2 देखो कैसा हो जाएगा. ये हो जाएगा 7 minus 9 2, 9 6 minus 21, 9 6 minus 21, 0 5 1 equals to 3 times बीटा. बीटा क्या है? देखो 3 times बीटा, तो जो बीटा है वो लिख दो. बीटा क्या है? बीटा यहां से लिखना पड़ेगा. ओके, 7 minus 9 2, 3 2 minus 7 0 5 1. ओके, ये हो गया. तो अभी आप सोच रहे हैं कि मैंने ऐसा क्यों किया. गिव मी अ मिनट, आई विल एक्सप्लेन दिस टू यू. देखो अभी ये वाला यहाँ पे जो मिला है, इसको ध्यान से देखो. इसको ध्यान से देखने पे आपको पता चलेगा कि जो सेकेंड रो है, लेफ्ट हैंड साइड को देखो. लेफ्ट हैंड साइड डिटर्मिनेंट में जो सेकेंड रो है, देखो क्या है, 9 6 minus 21. तो 9 जो है वो क्या है? वो 3 into 3 है. ये क्या है? ये 3 into 2 है. और ये क्या है? ये 3 into -7 है. तो मैं क्या देख रहा हूं कि तीनों डिटर्मिनेंट में 3 कॉमन मल्टीपल है. 3 कॉमन फैक्टर है. तीनों भी एलिमेंट के लिए 3 क्या है? 3 कॉमन फैक्टर है. तो वो 3 मैं कॉमन ले सकता हूं. दैट इज व्हाट इज दिस प्रॉपर्टी इंडिकेट्स. ये देखो ये 3 है ना, इधर 3 है ये वाला. देखो इधर भी एक 3 है और इधर भी एक 3 है. तो क्योंकि तीनों में 3 है, तो ये हम 3 बाहर ले लिए. तो देखो ये 3 बाहर दिख रहा है, और 3 बाहर जाएगा तो क्या, देखो ये 3 बचेगा. 3 2 -7, 3 2 -7. ओके, तो ये जो फोर्थ प्रॉपर्टी है, ये फोर्थ प्रॉपर्टी अलग अलग तरह से यूज हो रहा है. ओके, पहले क्या हमने यूज किया? पहले हमने इसको बोला कि अगर तुमने किसी भी रो या कॉलम के सारे एलिमेंट्स को एक कांस्टेंट के मल्टीप्लाई करोगे, तो जो वैल्यू है डिटर्मिनेंट का, वो के से मल्टीप्लाई हो जाता है. फिर हमने क्या देखा? वही प्रॉपर्टी हमने थोड़ा डिस्कस किया, तो हमको पता चला कि अगर मैंने किसी भी रो या कॉलम में से कुछ कॉमन फैक्टर देखा, तो वो कॉमन फैक्टर बाहर आ सकता है. एक और एग्जांपल लेता हूं आपके लिए. देखो जैसे यहाँ पे मैं लिखता हूं 2 1 7
217, 12, 12 and 18 minus 36. 12, 8, 12, 18 minus 36. 12, 18 minus 36 और यहाँ पे मैं लिखता हूँ 2, 3 माइनस 5, 2, 3 माइनस 5। अब देखो यहाँ पे मैं क्या देखता हूँ, मैं ये देख रहा हूँ कि R2 में मैं देख रहा हूँ कि कॉमन फैक्टर है। कॉमन फैक्टर क्या है, देखो ये जो 12 है इसको मैं 6 into 2 लिख सकता हूँ, ये 6 into 3 है और ये क्या है, ये 6 into -6 है। तो ये तीनों भी एलिमेंट में मैं क्या देख रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ कि तीनों भी एलिमेंट में 6 कॉमन फैक्टर है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग नेक्स्ट स्टेप में लिख सकते हैं, नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो ये 6 बाहर आ जाएगा। कौन सा 6 बाहर आया, ये वाला। तो 6 बाहर जब आ जाएगा तो जो R2 है वो क्या हो जाएगा, तुमने 12 में से 6 बाहर लिया तो 2, 18 में से 6 बार लिया तो 3 और -36 में से 6 बार लिया तो -6। R1 में कोई चेंज होगा, नो चेंज। R3 में होगा, नो चेंज। ओके, आई होप ये आप लोग की समझ में आ गया होगा। एक कॉलम से लेता हूं, देखो अभी एक कॉलम से लेता हूं मैं, एक हम लोग कॉलम वाला करते हैं। जैसे कि समझो मेरे पास में है 7, 1, 2, 3, 5, 1, 7, 1, 2, 3, 5, 1 and 14, 2, 4, 14, 2, 4। अब देखो मैं क्या देख रहा हूं, मैं देख रहा हूं कि जो कॉलम नंबर 3 है, कॉलम नंबर 3 उसमें 14 जो है इसको मैं लिख सकता हूं 7 into 2, 2 को मैं लिख सकता हूं 2 into 1 और इसको मैं लिख सकता हूं 2 into 2, 4 को मैं लिख सकता हूं। तो मैं देख रहा हूं कि तीनों एलिमेंट जो कॉलम 3 है उसके तीनों एलिमेंट में मैं देख रहा हूं कि 2 कॉमन फैक्टर है, 2, 2, 2, 2। तो ये 2 आ जाएगा बाहर, ये 2 जो कॉमन फैक्टर है ये बाहर आ जाएगा। ओके, एक मिनट, ये 2 बाहर आ जाएगा। तो जैसे ही 2 बाहर आएगा आपको क्या मिलेगा, देखो आपने 2 कहां से कॉमन फैक्टर निकाला है, कॉलम 3 में से। तो कॉलम 3 क्या हो जाएगा, 14, 14 में से 2 बाहर गया तो 7, 1, 2, 2 में से 2 गया तो 1 और 4 में से 2 गया तो 2। और R1 चेंज, सॉरी कॉलम 1 चेंज होगा नहीं, 7, 1, 2। कॉलम 2 चेंज होगा नहीं, 3, 5, 1। ओके, ऐसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा। आई होप ये समझ में आ गया होगा सबको। इसको जल्दी से कॉपी कर लो। देखिए यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, यहाँ से मैंने 2 कॉमन लिया है ना, तो मैं कॉलम 3 में से 2 कॉमन लिया है, तो मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा द कॉमन फैक्टर 2, the common factor 2 with all elements of C3 is written outside the determinant. It is written outside the determinant. Yes, you can copy this. Now we come to property number 5. See, the fifth property is if each element of a row or column, if each element of a row or column is expressed as the sum of two numbers, then the determinant can be expressed as sum of
two determinants. It can be expressed as sum of two determinants. Okay, now what does this mean? Let's have an example for this. देखो, एक डिटर्मिनेंट बनाता हूं मैं यहां पे और मैं लिखता हूं 7 5 11 2 3 1 0 2 5. ठीक है, देखो क्या बोल रहा है ये. The property says if each element of a row or a column, मतलब जो रो के लिए एप्लीकेबल है वो कॉलम के लिए भी एप्लीकेबल है, ये तो आप लोग समझ लेना. All the property which is applicable for row, it is always applicable for a column. Okay, for columns. The reason was the first property. When you interchange all rows with all columns, you get the same determinant. Okay. तो जो रो पे एप्लीकेबल है वो कॉलम पे एप्लीकेबल है ही है, ऐसा समझ लो. देखो यहाँ पे बोल रहा है कि if each element of a row or a column is expressed as sum of two numbers. Okay, sum of two numbers. तो देखो मैं क्या करता हूं, मैं करता कुछ ऐसा हूं कि ये जो फर्स्ट रो के एलिमेंट्स हैं इसको मैं देखो कैसे लिखता हूं. फर्स्ट रो के जो एलिमेंट्स हैं उनको मैं लिखता हूं, ये 7 है, 7 को मैं लिखता हूं 4 + 3. फिर 5 को मैं लिखता हूं 3 + 2. और 11 को मैं लिखता हूं 11 को मैं लिख सकता हूं 5 + 6. ओके, ऐसे ही. मतलब अब आप सोच रहे हो 5 + 6 क्यों लिखा, 8 + 3 क्यों नहीं लिखा. लिख सकते हो, 8 + 3 भी लिख सकते हो, यहाँ पे 8 + 3 भी लिख सकते हो, यहाँ पे 4 + 1 लिख सकते हो, यहाँ पे 7 है तो यहाँ पे तुम 2 + 5 भी लिख सकते हो. आपको सिर्फ देखना ये है कि जो नंबर यहाँ पे है वही यहाँ पे मिलना चाहिए. देखो ये 7 है तो ये भी 7 है, ये 5 है तो ये भी 5 है, ये 11 है तो इधर भी 11 है. ओके, आपको ये चेक करना है. क्या, तो ये मैंने कर दिया. 7 को मैंने लिखा 4 + 3, 3 + 2, 5 + 6. नीचे कोई चेंज नहीं है, 2 3 1 एज इट इज, 0 2 5. तो जो फर्स्ट था वो मैंने कर दिया. क्या मैंने कर दिया, देखो. If each element of a row or a column is expressed as sum of two numbers, मैंने sum of two numbers कर दिया ना. देखो दो दो नंबर कर दिया, 7 के लिए 2 नंबर कर दिए, 3 के लिए, 5 के लिए 2 नंबर कर दिया और 11 के लिए भी 2 नंबर कर दिए. और अगर ऐसा तुमने कर दिया तो क्या होगा, it says then the determinant can be expressed, the determinant can be expressed as sum of two determinants. The determinant can be expressed as sum of two determinants. क्या मतलब इसका, देखो इसका मतलब ऐसा कि ये हो गया तुम्हारा फर्स्ट, ये भी फर्स्ट के लिए, ये भी फर्स्ट के लिए. ओके, और ये जो हो गया ये हो गया तुम्हारे सेकंड के लिए, सेकंड डिटर्मिनेंट के लिए. देखते जाओ. तो पहला डिटर्मिनेंट मैं लिखूंगा, देखो यहाँ पे अब दो डिटर्मिनेंट बनेगा. ओके, इसमें लिखा है ना, then the determinant can be expressed as sum of two determinants. अब क्या होगा, क्योंकि तुमने हर एक एलिमेंट को sum of two numbers लिखा है तो अब तुम दो डिटर्मिनेंट लिख सकते हो विद अ प्लस साइन इन बिटवीन. कैसे होगा, देखो जो सेकेंड रो होगा, सेकेंड और थर्ड रो वो सेम होगा. सो 2 3 1 0 2 5. देखो 2 3 1 0 2 5, 2 3 1 0 2 5. ओके, एकदम सेम होगा, कोई चेंज. लेकिन जो फर्स्ट रो होगा वो इस वाले में सारे ऑरेंज वाले आ जाएंगे और इसमें सारे येलो वाले आ जाएंगे. ओके, तो देखो यहाँ पे आ जाएगा 4 3 5, 4 3 5, और यहाँ पे आ जाएगा 3 2 6, 3 2 6. ऐसे तो क्या हो गया, एक डिटर्मिनेंट का दो डिटर्मिनेंट बन गया.
Let's take one example for the same property with column. Okay, with columns. So suppose I have a determinant, and I have a determinant here. I have here 5, 3, 2, 7, 6, 9, minus 2, 1 and 0. Now what I do is I write here 5, 3, 2. This is minus 2, 1, 0. And this for 7 I write 5 plus 2. For 6 I write 4 plus 2, and for 9 I write 1 plus 8. Okay, 1 plus 8. Now I notice that all the elements of column 2, have been expressed as sum of two numbers. So now the determinant can be expressed as sum of two determinants. So see, I shade them as yellow, and here I shade them as red. So now I'll be writing two determinants. In the two determinants, check. Okay, the first column and the third column will have same values, no change there. So 5, 3, 2, minus 2, 1, 0. 5, 3, 2, minus 2, 1, 0. The second column of each will be different. Here you will have 5, 4, 1, and here you will have 2, 2, 8. This way. I hope you followed it. We are left with one more property. That I will be doing in the next video. Okay. Thank you.